who is very special, right? And we will be meeting him together. Okay? हम आज किसी special person से मिलने वाले हैं. I have brought him here for you all. आप सबके लिए मैं उनको लेकर के आई हूँ साथ में अपने, right? Are you ready to meet him, everyone? Yes. Very good. Now listen to me, everybody. What you have to do, आप सब, you have to keep yourself mute, right? Be calm and patient. Nothing should be at the background. Clear? No noise at the background. All of you will be listening to that person very carefully, right? आपने उनको बहुत अच्छे से सुनना है. Then whatever he is going to share with you, वो जो भी आपसे share करेंगे, if you are having any questions, you can just use the raise hand option. आपने raise hand option को use करना है, right? And then ma'am will take up the questions from you. Okay? Whatever questions you will be having, we will be having the question answer session at the end. So you have to keep your questions ready, and one by one we will be asking the questions from that person. Okay? Excited to meet him? Are you all excited? Yes. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So first of all of you, just give a big round of applause. Clap your hands for that person, everybody. Right? Very good. So we have with us Mr. Naren Sharma, who is Managing Admin at Nahar Group of Companies, and he is also the director of an NGO, right? Non-government organization, okay? And that is Jan Udhar Sansthan, जहाँ पर वो बच्चों को हेल्प करते हैं, जो बच्चे जिनके पास स्टेशनरीज नहीं है, जो स्टडीज करना चाहते हैं बट दे आर नॉट हैविंग द बुक्स विद देम, राइट? तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन उन बच्चों को हेल्प करती है, बुक्स प्रोवाइड करती है. जो बच्चे सिक हैं, जिनके पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स नहीं है, राइट, जो डॉक्टर्स को नहीं मिल सकते हैं अपने ट्रीटमेंट्स के लिए, सर की ऑर्गेनाइजेशन उन बच्चों को मेडिकल ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड कराती है. ओके, सो सर की ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही है सोशली, राइट? So now I'm going to welcome Mr. Naren Sharma. A heartiest welcome to you, sir. Thank you, thank you. And now, sir, as you saw that our kids are very excited to meet you. So without wasting any time, just over to you. Yes, sir. Oh, very nice. Very nice, very nice. I'm also excited, man. Okay, sir. So students, thank you. Students, sir भी बहुत ज़्यादा excited है आप सबसे मिलने के लिए. He is saying कि he is also very excited. जैसे कि आप, you all are full of excitement. You want to meet him. Same way, he is also there to meet you all. Okay, say hi to sir. Wave your hand. All of you wave your hand. Just wave your hand to sir. Hello, sir. Hello, hello, sir. How are you? Hello, sir. I love you all, बेटा. I love you all. I care you. हमारी जो जन उद्धार संस्था है, ये भी बच्चों के लिए ही काम करती है. इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ हूँ. उनसे बातचीत करूंगा, उनको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, उनकी बातें सुनूंगा. ये सारी बातें आपसे होंगी. 1 घंटे का शायद ये प्रोग्राम है, मैम बताएंगे. तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम होगा. मैं आपसे भी कुछ सीखूंगा, क्योंकि सीखने का कोई टाइम नहीं होता. बच्चों से भी सीखना पड़ता है, बच्चों को सिखाना भी पड़ता है. ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों?
Yes, sir. यस। Yes, sir. सो मैं बेटा स्टार्ट करने लगा। सबसे पहले तो मैं आई थैंक यू पल्लवी मैम, Yes, कौशिक sir. मैम। Secondly, I would also like to thank all the management committee members, all the staff, all the team of Unison Kinderworld for inviting me in the fantastic program Thank you that so is Elderberry session. Thank you so much, sir. Just sorry to interrupt you, sir. All the students, just switch on your videos. Please switch on your videos. अपने videos on रखेंगे and you will keep yourself रखेंगे, but videos on रखेंगे सारे बच्चे अपने। विख्यात, स्पर्श, अक्षित, everybody just switch on your videos. विख्यात चौधरी, switch on. Yes, very good. Akshit, switch. Aditi Akshit, switch on your video. Seema Sharma, switch on your video. Rachna ma'am, please switch on your video. Vikhyat Chaudhary, very good. Good. Yes, sir. Over to you. We would love to hear you, sir. मुझे पता है मैम, ये प्यारे बच्चे हैं, सारा आपका जो है, जो भी आपकी जो इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो कर रहे हैं, दिस इज वेरी गुड बच्चों। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आज। आई एम फीलिंग वेरी मच एक्साइटेड टू मीट यू, टू इंटरेक्ट यू बेटा। ठीक है बेटा, सुन रहे हो मेरे को? आवाज सबको आ रही है मेरी? हाथ खड़े करके बताना Yes, आपने। sir. Yes, ओके, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। Yes, और sir. या इसके साथ ही मैं स्पेशल थैंक्स करता हूँ हमारे जो यूनिसन किंडरवर्ड स्कूल के डायरेक्टर साहब, आरती मैम, पंकज अरोड़ा सर और अनिल सर, इन जो यूनिसन किंडरवर्ड के डायरेक्टर्स हैं, जिनकी एफर्ट से, जिनकी मेहनत से, जिनकी एडवाइस से, जिनकी गाइडेंस से आज यूनिसन किंडरवर्ड स्कूल बुलंदियों से जुड़ रहा है। और I wish Almighty that Kinderworld School will reach to its sky heights soon. Thank you so much, sir. On behalf of entire Unison fraternity and the family, I really thank you so much for your blessings. Thank you so much. Thank you. मेरी ब्लेसिंग्स हैं स्कूल के लिए, आपके लिए, कि आपकी ग्रोथ हो, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की ग्रोथ हो। ये बच्चे बड़े होकर के बड़े बड़े ऑफिसर बने, बड़े इंजीनियर बने, डॉक्टर्स बने और देश का, हमारे का नाम रोशन करे। ये भी मैं विश करता हूँ कि मेरे ये लवली किड्स हैं, मेरे प्यारे बच्चे हैं, बड़े सुंदर हैं, ब्यूटीफुल हैं, हैंडसम हैं, नाम भी बहुत प्यारे प्यारे इनके मैं सुन पा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। और सेकेंडली बच्चों, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन, यू ऑल आर सेफ एंड साउंड एंड इन गुड हेल्थ इन दिस कोविड-19 पीरियड। जैसे कि आपको पता है कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है। मैं भगवान से ये इच्छा करता हूँ, ये कामना करता हूँ कि आप सभी अपने घरों में सेफ एंड साउंड होंगे। ये मेरी भगवान से कामना है। मेरे बच्चों बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बेटा आपकी जो फेसबुक पे, यूट्यूब से माध्यम से आपके स्कूल की हर एक्टिविटी को चेक करता रहता हूँ, पल्लवी कौशिक मैडम के थ्रू, कि उनके मेरी प्यारी प्यारी जो नीस है, उनकी जो बेटी है अनवी, वो मेरे से बहुत प्यार करती है और वो मेरे हमेशा मेरे जन्मदिन पे, मेरे बर्थडे पे विश करती है और वॉइस कॉल भेजती है, अपनी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज मेरे को दिखाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे वो मेरी प्यारी बच्ची है, आज आप भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मेरे साथ हो, तो आई एम फील मोर एक्साइटेड। तो जैसे बच्चों इंस्टेंट कॉफी होती है ना, आप इंस्टेंट कॉफी बनाते हैं, इंस्टेंट डिप टी बनाते हैं, ऐसे ही आज इंस्टेंटली अभी जस्ट 2-3 मिनट पहले ही जैसे ये प्रोग्राम शुरू हुआ, इस स्कूल के बारे में मेरे को कुछ चंद लाइनें याद आ रही हैं जो आप सुनोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा। सुनिए, यूनिसन किंडरवर्ड स्कूल की अहमियत क्या है, इसकी फेमस का कारण क्या है। सुनिए, एक कोहेतूर पहाड़ है, हिल स्टेशन है कोहेतूर, यहाँ का काजल भी यहाँ पर हमारे काम आता है। तो कहते हैं कि कोई भी जर्रा दूर नहीं है, कोई भी जर्रा दूर नहीं है, ये पर मंजिल दूर नहीं है,
गुण यूनिसन बड़े रखता है ऐसे तो मशहूर नहीं है। गुण यूनिसन बड़े रखता है ऐसे तो मशहूर नहीं है, ऐसे तो मशहूर नहीं है। Thank you so तो much. नेक्स्ट Really means a lot to us. Thank you so much. And the नेक्स्ट लाइन में किंडरगार्टन वर्ड के बारे में और 3 लाइनें अभी अभी जो मैंने इंस्टेंट कॉफी की तरह तैयार की है। बच्चों सुनो मेरे प्यारे बच्चों। कहता बादल की घटा चढ़ी घनघोर, बादल की घटा चढ़ी घनघोर, इस रेनी सीजन में पानी बरसा जोरों जोर, इस रेनी सीजन में पानी भी बरसा जोरों जोर, आज आ पहुंचे हम किंडर वर्ड पिंजौर, किंडर वर्ड पिंजौर। बादल की घटा चढ़ी घनघोर, इस रेनी सीजन में पानी भी बरसा खूब जोरों जोर, आज आ पहुंचे हम किंडर वर्ड पिंजौर, यश फैला है जिसका चारों ओर, यश फैला है जिसका चारों ओर, आई विश टू ऑलमाइटी, आई विश टू ऑलमाइटी के ये इसकी कीर्ति फैले चारों ओर। किंडर वर्ड पिंजौर, किंडर वर्ड पिंजौर, बादल की घटा घनघोर, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। दिल क्यों मांगे मोर? क्योंकि अब तक ये स्कूल छोटा था, अब ये नेक्स्ट इंटरनेशनल लेवल पे जाने वाला है, इसलिए ये दिल मांगे मोर मैंने इसलिए ये लफ्ज जोड़ा बच्चों आपके लिए कि ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। इस बात पे क्लैपिंग तो बनती है बच्चों कि आप बहुत ही एक जो उच्च श्रेणी के स्कूल में पढ़ते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं जन उद्धार संस्था का डायरेक्टर भी हूं और मैनेजर एचआर नाहर ग्रुप में भी हूं। बेटा आप बहुत लकी हैं कि आपको इतने अच्छे स्कूल मिले मेरे बच्चों, और आपके टीचर इतने एजुकेटेड। हमारी बैकग्राउंड पंजाब की है, हम एक छोटे से गांव में पढ़ते थे, हमारी लाइफ बहुत बच्चे हार्ड रही है। जैसे पिंजौर में आप पढ़ते हैं, आपके बिल्कुल घर के पास ही स्कूल है। अगर कोई बच्चा दूर से भी आता है, स्कूल ने अरेंजमेंट करा है बसेस वगैरह का, तो उनकी खुद की बसेस हैं, आपको घर से लेने आती हैं। मगर बच्चों हमारा टाइम ऐसा नहीं था। हमारा जो स्कूल था हमारे घर से 20 किलोमीटर दूर था, 10 किलोमीटर दूर था। कॉलेज हमारा 30 किलोमीटर दूर था। हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी जाने के लिए। पहले तो हमें अर्ली इन द मॉर्निंग उठना पड़ता था, नहाना धोना सारा करना पड़ता था। उसके बाद हमें जो स्कूल का जो हमारे गांव का बस स्टैंड था वहां पहुंचना पड़ता था कि जो सरकारी बस चलती थी वो हमें टाइमली लेनी पड़ती थी कि हमारा स्कूल मिस ना हो जाए। फिर हम स्कूल से चलते थे शहर की ओर, जहाँ दूर गांव था, बड़ा टाउन होता था, उसमें हमारा स्कूल होता था, उससे भी हमें 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। आप कितने लकी हैं बच्चे, लकी हो ना? नहीं, हाथ खड़े करके बताओ। आपका टाइम बहुत अच्छा ना कि आपको पेरेंट्स भी एजुकेटेड मिले हैं आपको। यस, दैट्स नाइस। तो हमारा टाइम बहुत हार्ड था, हमारी बहुत मेहनत थी। हम स्कूल कैसे पहुंचे थे? उसके बाद और सुनो, जैसे हमारा स्कूल कॉलेज खत्म होता था, उसके बाद वापसी में फील्ड में म्यूट बेटा, म्यूट। सुन पा रहे हो बेटा सर? आ जाएगा तो और भी मैम सुन पा रहे हैं सभी बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड, सर, वेरी गुड, वेरी गुड। यस सर। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बच्चे बताया कि हम बस all of you, just all the students keep yourself mute. All the students keep yourself mute and listen to sir. Sir is telling you something very. He's sharing his experiences. कि आपके पास तो आपकी बसेस आपको आपकी स्कूल वैन्स आपको आपके होम से पिक करते हैं और ड्रॉप करते हैं, बट जब सर को स्कूल डेज में जाना पड़ता था तो उनको वॉक करके काफी दूर जाना पड़ता था, जहां
से he was able to get the buses and all, right? So just listen to his experience कि उन्होंने कितना struggle किया है. थोड़ा धीरे बोलो। We are very कि हमें हर चीज पास है. Just listen to sir, everyone. Yes sir, please continue. थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। करने सर को Yes sir, please continue. Sir, your voice is not audible. Yes sir, please continue. इसी बीच मेरे को आज देख पा रहा हूँ कि आज जो डेट है वो भी बहुत यूनिक डेट है, 10-10-20। क्यों बच्चों? 10-10-20, 10-10-20, 10-10-20। बहुत ही अच्छी डेट है। 10 प्लस 10-10-20-20। यस, ओह या, वेरी गुड। क्या बात है, कितने मेरे बच्चे आज टैलेंटेड हैं, आज कितने शार्प है बच्चे। हमारे टाइम में इतने हम शार्प नहीं होते थे। मैं तो बहुत ही लकी महसूस कर रहा हूँ कि आप इतने छोटे छोटे से बच्चे, 4 साल से 9 साल के, और इतने लकी है। और मेरे को भी करेक्ट कर रहे हैं, मेरे को भी अच्छा लग रहा है, मेरे को भी सीखने को मिल रहा है। 10-10-20-20, 10 प्लस 10, 20-20-20। ये बहुत ही अच्छा डेट है ना बच्चों। और आज से 5 दिन पहले, हाँ, और आज से 5 दिन पहले भी एक डेट आई थी, 5-10-20, मतलब 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 10 20, 5-10-20। ये बहुत ही अच्छी डेट है। और मैं खास तौर पे ये मेरे को अभी इसी डेट से एक याद आया कि आज जिस भी बच्चे का बर्थडे है, आप लोगों में से जो भी मेरे को सुन पा रहे हैं, घर में बैठे हैं या लाइव है, या टीचर्स है, या किसी का भी जो मेरे को सुन पा रहे हैं, जिसका भी आज बर्थडे है, हम अपनी जन उद्धार संस्था की तरफ से उनको 251 का कैश प्राइज देंगे। 251 का कैश प्राइज देंगे जिसका भी आज बर्थडे है। जहाँ हम एक गिफ्ट भेजेंगे आपको, आपके पल्लवी मैम हमें भेजेंगे कि किस भी बच्चे का, उनकी मदर्स का या पेरेंट्स का, किसी का भी, कोई टीचर्स का बर्थडे है, वो हमें भेजिएगा। हम आपके स्कूल के बच्चों के लिए गिफ्ट या कैश प्राइज जरूर भेजेंगे। ठीक है बच्चों? थैंक यू। सेकेंडली, ये मेरे इसलिए याद आया कि जब हम छोटे थे ना, मैं जैसे मैंने मैम आपने कहा कि अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर करो। जब हम छोटे थे ना, तो हमारे पास आज की तरह मोबाइल्स तो हुआ नहीं करते थे, मोबाइल नहीं होते, ज्यादा टीवी भी नहीं थे उस टाइम, बहुत बाद में टीवी आए हैं। हम तो रामलीला वगैरह, जैसे आज आने वाले टाइम में रामलीला आ रही है, रामलीला देखते रहते थे। रामलीला जैसे ये अभी नवरात्रे आएंगे, उसके बाद रामलीला चलती है, तो रामलीला के टाइम में लोग देखने आते थे राम का करेक्टर, रावण का करेक्टर। तो उसमें हमारे जो गांव में रामलीला होती थी, वो बच्चे बड़े ध्यान से देखते थे। मगर जब मैं चंडीगढ़ में आया, यहाँ पर जैसे हमारे रामलीला का ऑर्गेनाइज किया हमने, तो बहुत ही कम गैदरिंग होती थी। अगर गैदरिंग भी होती थी बच्चों, तो वो उसमें शोर शराबा बहुत होता था। एक बार हम वहां पर रामलीला देखने गए मैनेजमेंट कमेटी के साथ। मैं
हमारे ट्रेडिशन है इसको चालू रखना है। हमने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हमारे इतिहास के साथ, हमारी हिस्ट्री के साथ जोड़ना है। इनको कैसे बच्चों को हम अपने साथ जोड़ सकते हैं, कैसे पेरेंट्स को ज्यादा जोड़ सकते हैं, तो मैंने उनको सजेशन दिया। उनको बोला कि जैसे एक सीन खत्म होता है उसके बाद हम कुछ ऐसे ऐसे गिफ्ट बच्चों को देंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चों को पूछेंगे कि ताकि बच्चे का क्रेज बना रहे कि ये जो सीडी खत्म होगी या ये जो प्रोग्राम खत्म होगा उसके बाद हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम उसका क्वेश्चन का जवाब देंगे और हमारे क्वेश्चन के जवाब में हमें कुछ गिफ्ट वगैरह मिलेगी। क्योंकि वो जो रामलीला वगैरह यहाँ चंडीगढ़ में होती थी एक गैस एजेंसी के सामने होती थी, और जो गैस एजेंसी के मेरे मित्र हैं रमन गुप्ता जी, तो उन्होंने मेरे को ऑफर किया कि जितनी भी आपने गिफ्ट बांटनी है, जितने भी आपने इनाम वगैरह अवार्ड देने हैं बच्चों को या पेरेंट्स को, वो मेरी तरफ से होंगे। वो कहते हैं मेरी गैस एजेंसी है, मेरे पास लाइटर होते हैं, मेरे पास गैस के पाइप्स होते हैं, मेरे पास गैस के स्टोव होते हैं, मेरे पास रेगुलेटर होते हैं। आप रामलीला के दौरान प्रोग्राम पूछिए, जैसे सीडी खत्म होगी उसके बाद बच्चों को इनाम देंगे। तो ऐसे मैंने फिर ये काम स्टार्ट किया। जैसे ही वो राम का कोई रोल करके जाता उसके बाद हम उसी में से क्वेश्चन पूछते, बच्चों को पूछते, बच्चों के पेरेंट्स से पूछते। जैसे मैं उसमें फनी क्वेश्चन भी होते थे बच्चों हमारे लिए। जैसे रामलीला खत्म होने मैंने उनमें से पूछना बच्चों को जब सीडी खत्म होने कि बच्चों आप में आपके पेरेंट्स का नाम कोई राम या सीता है जो यहाँ पब्लिक में बैठे हैं? तो उनमें से एक दो बंदे खड़े हो जाते थे कि राम और सीता के हाँ हमारा नाम है। तो जिसका राम और सीता वगैरह नाम होता था हम उसको कुछ गिफ्ट प्रोवाइड करते थे। सेकेंडली हम दूसरा क्वेश्चन उनको पुट करते थे कि भी किसी के पास भी 1 रुपीज का नोट हो, अगर कोई भी निकाल के दिखा सकता है तो उसको हम गिफ्ट देंगे। ऐसे ही मेरे पास है। तो ऐसे जो उसमें क्रेज बनता था, वो रामलीला देखने आने लगे डेली। बच्चे भी, उनके पेरेंट्स भी। हम उनमें से पूछ लेते थे कि आज रामलीला में कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जिसकी लड़की भी हो, उसकी मम्मी भी हो, या नानी भी हो, तीनों पीढ़ी आई हो, ऐसे कोई पेरेंट्स हैं, उनमें से भी निकल आते थे। तो उनको हम कैश प्राइज देते थे, उनको अवार्ड देते थे। तो वो हमारी रामलीला का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा इससे। ऐसे ही मैंने इसी आधार से हम जनोद्धार संस्था से आपको पूछा कि आज किसका बच्चों जन्मदिन है, आज बहुत ही अच्छी डेट है, जिसका भी जन्मदिन है तो हम उनको कैश प्राइज देंगे। Sir, I am also 1 rupee note. ओह वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको भी बच्चे हम इनाम भेजेंगे। और नोट जो है, अगर किसी और बच्चे के पास भी बच्चे नोट होगा और सब Sir, I am seeing on I can show 1 rupees note है। Sir, I can show next Saturday मेरे पास भी 1 rupees note है। बिल्कुल बिल्कुल, आप मैन को शो करना, हम मतलब आपको अवार्ड देंगे। तो ऐसे ये मतलब हम पुराने जमाने में हमारा जो समय चलता था उसमें हम ऐसे करते थे। हमारी जो बैकग्राउंड थी बेटा वो गांव की थी। जैसे आजकल आपको घूमने को नहीं मिलता, हम जब छोटे थे हमें घूमने को मिलता था। हम अपने चाचा के घर, हम अपने ताया जी के घर, हम अपनी मासी जी के घर जाया करते थे। कुछ हमारे ऐसे रिलेटिव्स होते थे जिनके खेत होते थे, जिनके गायें भैंसें रखी होती थी, वहां हमें दूध मिलता था और हम दूध कैसे निकलता उसको देखते थे बच्चों। जैसे मेरे को जोक डाला है कि मैं आज की टीचर किसी बच्चे को पूछती है कि बेटा दूध कहाँ से आता है, बोला वो दुकान से आता है, बेर का दूध से आता है। उनको तो ऐसा ही पता था कि बेर का दूध से आता है। बच्चों आपको पता बच्चों दूध कहाँ से आता है?
Cow goes swallow. Milkman. Cow. Swallow and milkman. Cow. Yes, yes. Who gives us milk? Gives Very good. Intelligent you all are. So intelligent everyone. Now sir is telling you about a joke. Please tell. हेलो, Yes, sir. आवाज हाँ जी सर, we can hear you. या आपकी आ रही है सर? आवाज बिल्कुल आ रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक जी यू। सर, हाँ जी सर। तो आपके भी पल्लवी मैम बच्चे बहुत शार्प हैं। जैसे इनको तो सारी आपने गाइडेंस दे रखी है, तो बच्चों की ये सारा पता है कि जो दूध आता है, तो जैसे मॉडर्न जमाना हो रहा है तो ये चीजें हमें इतिहास के साथ जुड़नी चाहिए। हमें जैसे मैंने बताया कि बच्चों के पेरेंट्स को उनके जो अगर उनकी पीछे बैकग्राउंड है, उनको साल में 6 महीने में 3 महीने में उनको वहां पर बिल्कुल लेके जाना चाहिए, ताकि उनको बच्चों की जो है जो लर्निंग डेवलपमेंट होती है, उन बच्चों को देखते हैं कि गांव कैसा होता है, गांव में कैसे लोग होते हैं, कैसे होते हैं। हमारे टाइम तो बहुत ही साधारण लोग होते थे, उनको इतनी नॉलेज नहीं थी। जैसे बच्चे इतने शार्प, इतने टैलेंटेड हैं, मैं तो हैरान हूं आपके बच्चों को देख करके। तो मेरे इसी बात में जोक आ गया। एक हमारे साधारण से जो गांव में थे पर्सन, उनका नाम रामजी प्रसाद था। तो एक बार की बात है, पहले क्या था कि हर चीज की स्केर्सिटी होती थी। आज तो हमारे घर में दूध है, दही है, मक्खन है, पनीर है, फ्रूट्स हैं, हर चीज पेरेंट्स बच्चों को दे सकते हैं। हमारे टाइम तो बहुत सारे गांव में ऐसे घर होते थे जिनके पास ना गाय थी, ना भैंस थी, ना दूध था। वो एक दूसरे से मांग कर ही काम चलाते थे, एक दूसरे के सपोर्ट से काम चलाते थे। वो शर्म महसूस नहीं करते थे कि अगर किसी के घर में दूध नहीं था, लस्सी नहीं थी, वो ये कहते थे पड़ोसियों से ले आओ। तो ऐसी मेरी एक जोक याद आया। एक उसमें से रामजी प्रसाद दही लेकर किसी घर से आ रहा था, उसके ऐसे हाथ में दही था, कर्ड जिसको आप बच्चों बोलते हैं, कर्ड था। तो वो कर्ड लेके आ रहा था कि एक छोटा सा शरारती बच्चे ने उनसे, उनके पुरानी घड़ी होती थी उनके पास, उनके घड़ी होती थी, जो टाइम वगैरह भी, घड़ी भी बहुत बाद में आई है हमारे पास। वहां पर हमें भी पता नहीं लगता था टाइम का, हमें पूछ के आना पड़ता, टीवी हमारे टाइम में भी नहीं थे। तो जैसे वो कर लेके आ रहा था, उसके घड़ी लगी हुई थी, वॉच जिसको हैंड वॉच बोलते हैं। तो शरारती से बच्चे ने पूछा, अंकल अंकल टाइम कितना हो गया? तो वो साधारण थे, नॉलेज इतनी कम थी, तो उन्होंने बच्चा बोलो 11 o'clock या 11 बज गए हैं। तो उसका सारा दही नीचे गिर गया, उसका सारा दही कर नीचे गया, कि साधारण था, इतनी नॉलेज नहीं थी, इतने शार्प नहीं थे, इतने साधारण लोग थे। बोलो 11 बज गए तो उसका दही नीचे गिर गया। तो दूसरे दिन ऐसे या दूसरे तीसरे दिन फिर वो ऐसी कर्ड या लस्सी या कुछ भी चीज किसी से यहाँ से लेके आ रहा था। वो शरारती बच्चा था कि ये साधारण है, इससे एक बार फिर पूछा जाए। तो वो जो दही लेके आ रहा है, तो फिर वो पूछता है उनसे कि अंकल अंकल टाइम कितना हुआ? तो उसको ये तो दिमाग में रहा कि उस दिन मेरा दही नीचे गिर गया था या कर्ड नीचे गिर गया था, आज मैं इसको घुमा के नीचे को मत बताऊं। तो वो बोलता, यार मैंने आपको टाइम नहीं बताना, उस दिन आपने टाइम मेरा सही ले लिया, आपको टाइम बताते मेरा सारा दही गिर गया। तो उसने पीछे को नहीं, उसका सारा कर्ड गिर गया। तो ऐसे वो साधारण लोग थे, उनको नॉलेज नहीं थी, वो बहुत ही प्यारे मतलब साधारण से लोग थे। उनको जब नॉलेज कोई देता था उनको अच्छा लगता था। उनके बच्चे को, कई तो वैसे थे बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते थे, खासकर तो लड़कियां हैं। बच्चे समझ आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, very good, very good. I could see the smiles on their faces. जो आप jokes वगैरह सुना रहे हैं उनको. Yes, sir. See the smiles on the faces of the children. बहुत मजा आया सर। Yes, sir. मुझे भी मजा आ रहा है आपसे बातें करके। All enjoy. Yes, sir. Yes, sir. Please continue, sir. हाँ,
सेकेंडली जैसे मैंने टिकट की आपको बात बताई कि हम सारी गिर गई। यस 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 तो सेकेंडली जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा टाइम इतना हार्ड होता था, हम जिस बस में जाते थे उसमें टिकट लेनी पड़ती थी हमें। हमारा बच्चों का तो पास बना होता था और कुछ लोगों को टिकट लेनी पड़ती थी। जैसे हमारा 30 पैसा लगता था, 1 रुपीज लगता था जाने के लिए। तो उसमें कंडक्टर होता था, वो हमसे पूछता था हाँ जी टिकट लो, हाँ जी टिकट लो आप भी। तो उसमें भी हमें कुछ फनी चीजें सीखने को मिलती थी, कुछ जोक्स सुनने को मिलते थे बीच में। जैसे कंडक्टर आता था तो वो एक हमारे शख्स बैठे होते थे साथ में सीट के ऊपर, उनसे पूछता था हाँ जी टिकट लो, आपने कहाँ जाना है। तो वो शायर से किस्म का आदमी था, कवि था, पोइट था। बोलता हमने बादलों के उस पार जाना है, हमने बादलों के उस पार जाना है। वो बोलता भाई मैं टिकट पूछा है, भाई आपने कहाँ जाना है, आप डेस्टिनेशन आपका क्या कौन सा है, आपको चंडीगढ़ जाना है, खर्ड जाना है, पिंजौर जाना है। इस बात के लिए बादलों के पार नहीं मैंने पूछा, बादलों के पार बस नहीं जाती ये बस। हाँ बोलो बोलो बादलों के उस पार जाना है। और दूसरे लड़के से पूछता है हाँ जी टिकट, बोलो हाँ टिकट दे दो, ये लो जी 2 रुपीज दो, टिकट दे दो। वो कितनी टिकट, बोलो 2 टिकट दीजिए। बोलो दूसरा बंदा कौन है, कहता मैं ही हूँ जी। बोलो तू ही हो, तो 2 टिकट क्यों लो रहा है, कहती अगर एक गुम होगी तो ये दूसरी ले रहा हूँ। तो उसी में से हमें कुछ योग फनी चीजें मिलती थी। और तीसरा, हम जब छोटे थे, हमारे टाइम जैसे मैंने आपको बताया मोबाइल हमारे पास नहीं थे, टीवी हमारे पास नहीं। यस तो सर उस जमाने में लोगों को तमीज नहीं। बेटा वो मैंने जैसे बताया, आपको अच्छे टीचर्स मिले हैं, आपको अच्छे गाइड करने वाले मिले हैं। आपको जैसे पल्लवी अवस्थी मैम है, पल्लवी कौशिक मैम है, इतने अच्छे अच्छे और आईटी सेल के टीचर्स हैं। आपको डेली नॉलेज देते हैं, कैसे खड़े होना है, कैसे बैठना है, कैसे एटिकेट्स है, क्या मैनर्स है, आप दूसरों से करना है, अपने मम्मी डैडी की रिस्पेक्ट करनी है, रोज सिखाते हैं, आप सीखते थे। वहां सिखाने वाले काम होते थे, हमारे लिंक अप नहीं थे। आज तो मैं देखो आपके पास लिंक अप करके आपके पास ऑनलाइन मैं बैठा हूँ चंडीगढ़ में आपसे बात कर रहा हूँ। तब हम कहाँ बात करते थे, अब हमारे लेटर्स होते, किसी को हमें अपना दुख दर्द भी बताना होता था, किसी से पूछना भी होता था, दूर रहते थे, उनको एक लेटर डालते थे। वो लेटर भी 10 दिन बाद मिलता था उनको कि हाँ आप कुशल में है, यू आर हेल्दी। और फिर उनका जवाब आता था, वो 10-10 दिन बाद, 15 दिन बाद आते थे। और अगर तो आपके जो रिलेटिव फॉरेन में होते थे तो एक महीना, 2 मंथ्स लग जाते थे उनकी कुशल क्षेम पूछने के, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे जो संबंधी हैं वो ठीक है या नहीं है। आप तो बेटा बहुत ही लकी हैं कि आप इस मॉडर्न जमाने में है और आपको अच्छे स्कूल में कैसे आता था? सर कैसे आता था लेटर? जी हाँ बेटा, हम लेटर लिखते थे, हम एक पेपर पे, एक्सक्यूज मी सर, जैसे अभी आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे ना, पोस्ट ऑफिस में एक लेटर मिलता था ब्लू कलर का, उसके आप हम लिखते थे रिस्पेक्टेड दादाजी, रिस्पेक्टेड मासी जी, हम यहाँ पर ठीक ठाक हैं और भगवान जी से दुआ करते हैं आप भी वहां पर ठीक ठाक से होंगे। और फर्दर रिपोर्ट ये है कि सर लेटर बॉक्स। यस यस, फिर भी उसको हम लेटर बॉक्स में डाल के आते थे। वो लेटर बॉक्स का जो पोस्टमैन होता था फिर वो पोस्ट ऑफिस में लेके जाता था, फिर बसेस में, ट्रेन से वो दूसरी शहर में जाता था, फिर वो उनको I am also going letter post office. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। तो ये मतलब हमारा जो हमारा पीरियड था वो सर एक्चुअली दे वांट टू नो कि आपके टाइम पे लेटर्स कौन लेके जाता था। पोस्टमैन, जिसको हम पोस्टमैन पहले तो बेटा हमारे जो लेटर Sir, by walking or by vehicle? ओके स्टूडेंट, सर इज टेलिंग यू कि सर के टाइम पे भी पोस्टमैन थे,
It was not like कि postman are nowadays only. Postman early अभी जब sir child थे तब उनके टाइम पे भी they were postmen. Okay, so let's hear more. Sir, मेरी मैम ने postman सुना. Yes sir, please continue. Postman वाली. Student. So you are muted. वाली कहानियाँ सुना. We cannot hear you. Sir, please unmute yourself. Sir, please unmute. Yes sir. लेटर की बात करता हूँ कि बहुत सारे हमारे घर ऐसे होते थे, उन घरों के जो मेंबर्स होते थे, फैमिली मेंबर्स, उनमें से अगर 10 मेंबर्स हैं या एक स्ट्रीट में 10 फैमिलीज रहती हैं, उनमें 2 या 3 लोगों को लेटर लिखना आता था। बहुत सारे लोगों को लेटर लिखना नहीं आता था कि उनको नॉलेज नहीं थी, वो अनएजुकेटेड थे। पहले अगर एक घर में 5 लड़के या लड़की होते थे पुलिस में, ताकि उनके पास जो जमीन होती थी तो क्यों बंट ना जाए कि अगर ये हमने इनको पढ़ा दिया लिखा दिया या अपना हिस्सा मांगेंगे। पोस्टर वाली कहानियाँ सुनाती है। तो इतना वो हमारा क्रूशियल जो पीरियड था वो हमारा इतना था कि वहां तो लेटर लिखने वाला भी कोई नहीं होता था। लेटर लिखने के लिए या लेटर पढ़ाने के लिए हमारे पास लोग आते थे। मेरे पास तो मेरे ख्याल, क्योंकि मैं वहां पर शहर में पढ़ने जाता था, कॉलेज में पढ़ने जाता था, मेरे हिसाब से मेरे दिन में मेरे पास शाम को 3 या 4 लोग ऐसे आ जाते थे जो ये कहते हैं हमारा ये लेटर, हमारी मासी जी का लेटर आया, हमारे ताऊ का लेटर आया है, फौज से लेटर आया, मिलिट्री से लेटर आया, कि इसको पढ़कर सुनाओ ये क्या लिखा हुआ है। तो हम उनको पढ़कर सुनाते थे, फिर वो खुश होते थे। फिर वो दूसरे तीसरे दिन आते थे, कुछ चीजें याद करके लेके आते थे कि ये लिखो उनको कि हम यहाँ पर ठीक हैं, पल्लवी के लड़का हुआ है, फलाने के ये हुआ है, ऐसा मतलब वो सारा लिखाते थे। फिर वो लेटर वहां पर पहुंचती थी, वो खुश होते थे, फिर उनका रिस्पॉन्स आता था, उनकी रिप्लाई आती थी। आज तो बेटा आपके पास देखो व्हाट्सएप है, टेलीफोन है, आप एकदम से आपको विद इन सेकंड ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, कनाडा से, फॉरेन से, ऑल ओवर हमारी कंट्री से ये चिट्ठी आ जाती है, ये एकदम सूचना आ जाती है, एकदम इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि फलानी जगह क्या हुआ। तो ये टाइम तो बहुत ही है। तो सेकेंडली बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि आप इंडिया में हो, आप भारतवर्ष में हो। हमारा भारतवर्ष बहुत ही एक लकी जो है कंट्री है। आपने बच्चों अपना हमेशा नेशनल कैरेक्टर बना करके रखना है। हमारे भारतवर्ष, जिस भारतवर्ष में हम रहते हैं, उनकी हमेशा तारीफ करनी है, उनके हमेशा गुणगान करना है कि हमारा इंडिया इज द बेस्ट। चाहे हमारी हॉकी टीम है, चाहे हमारी क्रिकेट टीम है, जैसे हमारे मैचेस होते हैं हम उनको वाकअप करते हैं, जैसे हमारा इंडिया जीतता है, कि कोई गेम को विन करते हैं हम इंडिया की वाहवाह करते हैं, और ऐसे ही करते रहना है। तो इसके बारे में बता रहा था, जो जापान है कंट्री है, उसमें एक जेन चलते हैं, जैसे हमारे रुपीस चलते हैं, और कनाडा में, अमेरिका में डॉलर चलते हैं। उनकी जो करेंसी है जापान की, वो जेन करेंसी है। तो एक बार इंडिया से कोई हमारी पर्सनालिटी, कोई ग्रेट पर्सनालिटी वहां पर गई घूमने फिरने के लिए टूरिस्ट वीजा पे। वहां पर जब वो जापान पहुंची, वहां से उनके एक इंडिया से मित्र का फोन गया, उनके फ्रेंड्स का फोन गया कि भाई आप जापान में गए हुए हो, वहां से कुछ मेरे लिए बुक्स लेके आना। और बुक्स का नाम भी उन्होंने बोला कि ये बुक ऑन फ्लावर अरेंजमेंट्स। उन्होंने बोला ठीक है जी, ले आऊंगा मैं। वो किसी वहां पर शॉप पे गए, और शॉप पे जाके उन्होंने बताया कि भाई एक फलाने राइटर हैं आपके, एल्बर्ट और बेंजामिन, उनकी ये लिखी हुई एक बुक है, उनका नाम है ए बुक ऑन फ्लावर अरेंजमेंट्स, वो हमें चाहिए। तो उन्होंने बोला जी जरूर मिल जाएगी आपको ये बुक्स। उन्होंने उनको बुक्स दिखाई। वो जो बुक्स थी वो 3 जेन की थी, जैसे मैं 3 रुपीज बोल रहा हूँ, $3 बोलता हूँ, वो 3 जेन की थी। मगर उस बुक के ऊपर काट करके 3 काट करके 5 लिखा हुआ था। जो उसकी प्राइस लिखी होती है कि बुक कितने की है, जहां प्राइस का लेबल लगा होता है, वहां पर लिखा था 3 काट करके 5 लिखा था बेटे।
तो जब उन्होंने बुक्स इंडियन ने देखी, उनको बुक के पन्ने पलट कर देखे, सारे उसके पेजेस वगैरह देखे, वो ओके है। उन्होंने जब फर्स्ट पेज देखा, उस प्राइस पे बोला कितने की है ये बुक? उन्होंने बोला 3 येन की है सर। उन्होंने बोला बेटा ये तो काट के तो यहाँ पर इसके ऊपर 5 लिखा हुआ है, तो आप इसको 5 की क्यों नहीं दे रहे, एक को 3 येन की क्यों मेरे को दे रहे हो? तो उन्होंने बताया कि सर वैसे इनके रेट रिवाइज हो चुके हैं, पहले ये बुक 3 येन की थी, अब ये बुक है 5 येन की हो चुकी है, मगर हम आपको ये बुक 3 येन की ही देंगे, ताकि इंडिया में जाकर के आप ये मत कह देना कि जापान वालों ने हमारे साथ धोखाधड़ी की है कि 3 रुपए की बुक थी, 3 रुपीज की बुक थी, हमें 5 रुपीज की दे दी। क्योंकि हम जापानी हैं, हम अपना नेशनल कैरेक्टर बरकरार रखना चाहते हैं, भले ही हमारे को घाटा लग जाए, भले ही हमारे को लॉस लग जाए, मगर हम ये आपको बुक्स 3 येन की ही देंगे, 5 की नहीं देंगे। मगर वो कहता भी मैं 5 येन के भी उसको 10 येन दे करके आया कि आपका इतना बड़ा नेशनल कैरेक्टर है। तो बच्चों इससे हमें सीख लेनी चाहिए फॉरेन कंट्री से कि हमें भी अपने इंडिया की हमेशा ऐसे ही इज्जत मान शान बना के रखनी चाहिए। ठीक है बच्चों, सुन रहे हो ना मेरे को ध्यान से? यस सर। अच्छा लग रहा है ना बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। और दूसरी बात मैं पेरेंट्स को Okay, let's hear some more things from sir. Yes, sir. और सेकेंडली मैं अपने जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो भी मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को उनसे बात करके भी, वो भी खुश हो रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मेरे को भी आते हैं, पहले भी आते हैं कि बच्चे कुछ शाइनेस महसूस करते हैं, कुछ बच्चे हेजिटेट महसूस करते हैं, वो फील करते हैं ऐसा कि खुलकर बात नहीं करते। तो इसके लिए क्या है कि जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना क्राइसिस चल रहा है, तो हमारा टाइम क्या था, हम अपने टाइम में बहुत सारी अदर एक्टिविटीज करते थे। अगर बच्चों आपने अपनी लाइफ में कामयाब होना है, अगर आपने अपनी लाइफ में सक्सेस होना है, तो आप अपने पास एक एक्टिविटी जरूर रखिए, कोई भी एक्टिविटी, और पेरेंट्स को भी उसकी एक्टिविटी को पहचानना चाहिए कि मेरे बच्चे में क्या टैलेंट है, क्या एक्टिविटीज है, उसको वो पॉलिश करें। आज तो हमारे पास जैसे वेबसाइट्स हैं, हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास लिंक है, हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, बॉम्बे तक दिल्ली तक हमारे रिलेटिव रहते हैं, कनाडा अमेरिका हमारी लिंक है। हम अपने बच्चों को उस यूट्यूब से ढूंढ करके, नेट से ढूंढ करके उन बच्चों को पॉलिश करते हैं। जैसे कोई बच्चा सिंगिंग में है, कोई बच्चा डांस में है, कोई बच्चा ड्राइंग में है, कोई बच्चा मोनो एक्टिंग कर सकता है, कोई रोल प्ले कर सकता है, उनको करवाइए। हमारे टाइम में क्या था कि हम बच्चों का टाइम कैसे पास करते थे, हम एक्टिंग के माध्यम से, कि बच्चों को अगर घर में नहीं भेजना, जैसे हॉट सीजन में गर्मी बहुत पड़ रही है, बच्चे बाहर घूमते थे, उनको वहां पर कि घर में ही रहें, घर में रहकर हमारी बात सुने, हम उनके साथ रोल प्ले करते थे। हम तीन या 4 फैमिली के मेंबर बैठ जाते थे कि तूने डॉक्टर बनना है, तूने मदर बनना है, तूने दादी बनना है। बच्चों से पूछते थे, बच्चे आप पापा की एक्टिंग करके दिखाओ, बच्चे आप पापा की मिमिक्री करके दिखाओ, बच्चे मास्टर जी की मिमिक्री करके दिखाओ। तो उससे उन हम इन्वॉल्व होते थे। मैं क्या पेरेंट्स को भी क्या है, पेरेंट्स का बिजी शेड्यूल है, जो पेरेंट्स जो मदर फादर कहीं के दोनों वर्किंग में है, वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। मगर फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने बिजी शेड्यूल से बच्चों को इन्वॉल्व हो, बच्चों के साथ हर चीज शेयर करो, बच्चे की टैलेंट को पॉलिश करो, बैठ करके उनकी बात ध्यान से सुनो, उनसे लव करो, उनकी केयर करो, उनसे अपनी दिनचर्या में एक्टिविटीज में अपने में परिवर्तन कीजिए। जैसे आजकल बच्चे कुछ कंप्लेंट्स आते हैं जो है मोबाइल्स बहुत देखते हैं,
बच्चे मोबाइल्स बहुत देखते हैं, तो आप बच्चों के सामने एक रोल मॉडल बने कि आप खुद भी पहले मोबाइल थोड़ा सा बच्चों के सामने कम यूज कीजिए। अगर आपने यूज करना है तो मतलब बच्चों से हट करके कीजिए, क्योंकि बच्चे आपको देखकर ही सब काम करते हैं। आप सुबह योगा करिए, सुबह एक्सरसाइज कीजिए, और बच्चों को आप थोड़ा थोड़ा अपने लेवल पे बैठिए, उठाइए, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बेटा, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। इवन के अगर आप अपनी कार वॉश भी नीचे करना लेके जाते हैं तो उन बच्चों को साथ में लेके जाइए कि बच्चे आइए देखिए कार वॉश करते हैं, आप पाइप पकड़ लिए, उनको इन्वॉल्व कीजिए अपने साथ, ठीक है ना। हमारे टाइम में ऐसा ही था। हमारे टाइम में गेम्स कुछ अलग तरह की थी। हमारे टाइम पे जो इंडोर गेम थी, आउटडोर गेम्स थी, वो बहुत ही अलग तरह की थी। इसलिए अपने बच्चों को हौसला दीजिए, अपने बच्चों को पुशअप कीजिए, अपने बच्चों की गलतियां मत निकालिए। अगर आपका बच्चा कर रहा है तो उसको सुधारिए, नहीं बेटा यू आर डूइंग वेल, यू आर डूइंग गुड, अच्छा कर रहे हो बेटा, और अच्छा कर सकते हो। आपने कभी हार नहीं माननी, आपने कभी नेवर गिव अप नहीं करना। कि जब अगर एक बच्चे की कोई इच्छा है तो उसको बच्चे को बोलिए, जैसे कि हमारे एक राइटर हैं बेंजामिन, उन्होंने कहा था कि नेवर गिव अप ऑन व्हाट्स यू वांट्स टू डू। जो भी आप काम करना चाहते हैं, जो भी चीज आप हासिल करना चाहते हैं, उनके पीछे तब तक लगे रहिए जब तक वो हासिल नहीं होती। हार मानकर नहीं बैठना, हार किसी नाम का चीज का नाम नहीं है। जैसे नेपोलियन ने कहा था, इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट इन द डिक्शनरी ऑफ, इट इज इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है इस जगत में, एफर्ट्स कीजिए। अपने बच्चों को समझाइए कि बच्चे, अगर आपका बच्चा को कहता है मम्मी मेरे से ये काम नहीं हो पा रहा, मम्मी ये नहीं पा रहा, अगर उसकी आप खुद हेल्प कर सकते हैं खुद कीजिए। नहीं तो बच्चे को कुछ लिखना नहीं आ रहा, उसको बच्चा प्रैक्टिस कीजिए, कीप प्रैक्टिसिंग, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अब मैंने कार ली, मतलब इस उम्र में बच्चे बोले पापा इस उम्र में सीखोगे। मैं क्या बात है, सीखने की क्या बात है, मैं को 80 साल का थोड़ा ना हो गया, मैं तो अभी 50 का हूँ, कार सीखने में क्या प्रॉब्लम है। मैंने ड्राइविंग स्कूल से उनको बुलाया, कार सीखनी शुरू की, 10 दिन मैंने कार शुरू की। अब मैं उनको सिखा रहा हूँ बच्चे कार ऐसे चलाते हैं, तो बच्चे हैरान है। इसलिए कि सीखने की, सिखाने की कोई एज लिमिट नहीं होती, हर किसी से सीखिए। भगवान राम में 14 कला थी, कृष्ण में 16 कला थी। तो कला से वो कलाकार बनते हैं, भगवान बनते हैं। तो अगर आप में कोई भी कला है तो उससे आप कलाकार बन सकते हैं। आप में अगर कोई भी आर्ट है तो उसको डेवलप कीजिए अपने बच्चों में, ताकि वो आर्टिस्ट बने। आर्टिस्ट की आज इतनी वैल्यू है, चाहे वो एक्टर हैं, चाहे वो डायरेक्टर हैं, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, चाहे वो सॉन्ग गाते हैं, चाहे वो डांस करते हैं, चाहे वो ड्राइंग करते हैं, चाहे कोई और एक्टिविटीज है। स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज पैदा कीजिए उस बच्चों में, अपने बच्चों में स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज पैदा कीजिए। आज तो कोरोना काल है, हम नहीं निकल सकते, अब बच्चों को इंटरनल गेम्स में लगाइए। बहुत सारी कोई स्मॉल बुक्स होती हैं, बच्चों के लिए बुक्स होती हैं, बच्चों की स्टोरी बुक्स होती हैं, वो बच्चों को लाके दीजिए। आप खुद उनको स्टोरी सुनाइए, आप खुद उनको स्टोरी सुनाइए, अपनी पुरानी कहानी, अपनी लाइफ की, आपके दादा की, आपकी नानी की, आपकी मासी की, उनको कहानियां सुनाइए। जो आदमी को सक्सेसफुल होते हैं उनकी कहानी सुनाइए कि कैसे लोग सक्सेस होते हैं। जैसे बच्चों, मैं अपनी बात सुनाता हूँ कि मैं शुरू में, हमारे जो टीचर्स थे, हमें कहा करते थे कि चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब। क्या? चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा। तो मेरे चंडीगढ़ के, मैं उनसे मास्टर जी से पूछना, टीचर से पूछना, मास्टर ये चंडीगढ़ क्या है? तो उन्होंने बताना कि ये बहुत अच्छा टाउन है, वो बड़ा प्लान्ड वे से बना हुआ है। इसकी जो इनॉग्रेशन किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। इसकी जो भूमि पूजन किया था वो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। जो हमारे इसकी इनॉग्रेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। तो मेरे मन में चंडीगढ़ बस गया उस टाइम। इतना अच्छा अगर वेल प्लान सिटी है और ये इसकी जो इनॉग्रेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं,
तो इसमें जो रेजिडेंसेस बने हुए हैं, जो शॉप बनी हुई हैं, जो हमारे रोड्स बने हुए हैं, बहुत ही अच्छे मेथड के बने हुए हैं। मेरे तो घर कर गई कि मैंने जाना तो चंडीगढ़ नहीं जाना, अगर मैं अपनी लाइफ में रहूंगा तो चंडीगढ़ में रहूंगा। आज आप देख पा रहे हैं कि आई एम राइडिंग एट चंडीगढ़, चंडीगढ़। मेरे अंदर एक जुनून पैदा हो गया था कि मैंने चंडीगढ़ जाना है। तो जिस काम में जुनून आपके दिमाग में पैदा हो जाता है कि मैंने ये काम करना है, उसके पीछे लग जाइए। पेरेंट्स को भी कहो, बच्चों को खुद भी, सेल्फ भी, कि मैंने ये काम करना है तो करना है। जैसे मैंने सोचा कि मैंने चंडीगढ़ जाना है तो जाना है, मैंने उसकी रिसर्च करता रहता था अपने रिलेटिव से कि चंडीगढ़ कैसे है, हमारा क्या चंडीगढ़ में कोई रिलेटिव रहता है, हमारा कोई रिश्तेदार रहता है, ताकि मैं चंडीगढ़ जा पाऊं। मैंने अपनी जो लाइफ है बच्चों एक वर्कर से शुरू की, एक फैक्ट्री वर्कर से शुरू की। उसके बाद मैंने हमारे टाइम में, जैसे मैंने आपको बताया बच्चों, हमारे टाइम में चीजें नहीं हमारे पास होती थी, हमारे पास स्केर्सिटी थी हर चीज की, हमारे पास पेंसिल की कमी थी, हमारे पास कॉपीज की कमी थी। अगर हमें दूसरों से मांगना पड़ता था, जब हम दूसरों से मांगना पड़ता था तो हम उनको बनाकर रखनी पड़ती थी, उनसे लव करना पड़ता था दूसरों से, कि हम इनकी इज्जत करें, इनका मान करें, इनको अपना बनाकर रखें, अपनापन बनाएं इनसे, ताकि जब मैं इनसे कुछ चीज मांगू जो फट से दे दे। जब भी हमने अपने दोस्त से, अपने मित्र से, अपने भाई से, चाचा ताऊ के लड़के से कुछ मांगना, तो वो लोग पेंसिल चाहिए तो हम उससे लव करते, तो कितना अच्छा है, तारीफ करते थे। तारीफ तो भगवान को भी अच्छी लगती है ना, नहीं ना? भगवान की भी हम तारीफ करते हैं, उनके गुणगान गाते हैं, जय श्री राम जय श्री राम, तब वो खुश हो जाते हैं। तारीफ तो मैं अपनी वाइफ से कुछ लेना होता है तो उसकी भी कर देता हूँ। वो चीज उनसे चाहिए, कुछ बनवानी है, तो उनको तो आपके साला साहब तो बहुत अच्छे हैं, तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, तो बड़ी खुश हो जाती है वो। तारीफ कौन नहीं चाहता। हम बच्चों की तारीफ करते रहते थे। तारीफ करो किसी चीज की भी, तारीफ करने से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं आप। तारीफ हर किसी को, बंदे को पसंद है, हर किसी इंसान को तारीफ पसंद है। हम बच्चों की तारीफ करते थे ताकि उनसे कुछ मांग सके। जैसे मैंने बताया हमारे पास चीजों की कमी थी, पेंसिल मांगनी है, कागज मांगना है, तब हम उनसे मांगने के लिए ऐसे से हमें एफर्ट्स करनी पड़ती थी। इवन के जब हम किसी की शादी पे भी जाना पड़ता था, हमारे पास अच्छे क्लोथ्स भी नहीं हो पाते थे। हम अच्छे क्लोथ्स लेने के लिए भी बच्चों से, चाचे ताऊ के लड़कों से, कि भाई ये फलाने बंदे की शादी है, मेरे को तेरी शर्ट चाहिए, बहुत अच्छी शर्ट है तेरे भी जचती है, मेरे को भी दे दे, मेरे भी जचेगी। तो वो हम ऐसे ऐसे करके उनसे शर्ट पैंट चीजें लेते थे। हमारा टाइम इतना था, आप समझ सकते हो कि आप कितने लकी हैं बच्चों, कि आज आप हर रोज चीज चेंज करते हैं। अगर आप आज ब्लू शर्ट पाई है, कल आप रेड टी शर्ट पाते हैं। आपके बच्चों, हमारे पास यूनिफॉर्म भी नहीं होती थी, यूनिफॉर्म भी स्कूल में हमारे को दूसरी संस्थाओं वाले देते थे। इसलिए जो मैंने संस्था ये खोली है, ये मेरे मन में इसलिए आया कि जब हमें यूनिफॉर्म देने के लिए दूसरी संस्था से लोग आया करते थे। हमारे पास एक वहां पर संस्था थी, हेल्पलाइन, ऐसे कुछ संस्थाओं के नाम थे। जिंदगी नाम की एक संस्था आती थी, लाइफलाइन नाम की एक संस्था आती थी। वो हमारे प्रिंसिपल को, हमारे स्कूल के हेडमास्टर को पूछती थी कि यहाँ आपके पुअर बच्चे कौन से हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनके पास चप्पल नहीं है, ऐसे बच्चे कौन से हैं जिनके पास शूज नहीं है, ऐसे बच्चे कौन से हैं जिनके पास बैग नहीं है स्कूल के। तो हमें वो प्रोवाइड होते थे, पुअर बच्चों को प्रोवाइड होते थे। इसलिए मैंने ये लाइफ में सोचा कि मैं अगर जिस दिन भी बड़ा आदमी बनूंगा, जिस दिन भी मैं चंडीगढ़ जाऊंगा, जिस दिन भी मैं अपनी लाइफ में सेटल होऊंगा, मैं पुअर बच्चों की हेल्प जरूर करूंगा। इसलिए हेल्प अदर्स, हेल्प जरूर करनी चाहिए। अगर कहते हैं गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, अपनी तो सहायता आप करते ही हैं, गॉड भी आपकी सहायता करता है। मगर दूसरों की जब सहायता करते हो, दूसरे की आप हेल्प करते हो, तो भगवान आपकी रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है। सिख धर्म में हमारे गुरु नानक देव थे, वो हमेशा तेरा तेरा करते थे, मेरा मेरा नहीं करते थे। जब हम तेरा तेरा करेंगे, भगवान आपको सब कुछ देता है। भगवान ये कहता है कि आप दूसरों की हेल्प करके तो देखो आपको कितना सुकून मिलता है। इसलिए अपने बच्चों को भी ये चाहिए कि हमेशा अपने दूसरे बच्चे हैं, अगर आप तो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, मगर फिर भी हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें कुछ बच्चे कुछ पुअर होते हैं, उन बच्चों के वो खाना तक शेयर करते हैं, कुछ बच्चे एक दूसरे के साथ जब खाना तक शेयर करते हैं, टिफिन तक शेयर करते हैं, उनसे चीजें शेयर करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है।
उनकी भगवान रक्षा करता है। तो आप तो बहुत ही भाग्यशाली हैं, आज के युग में आप पैदा हुए हैं, आज के मॉडर्न युग में पैदा हुए हैं। इसलिए मैं पेरेंट्स को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों का पूरा पूरा ध्यान दीजिए, उनके साथ इन्वॉल्व हुइए, उनको बोलिए कि सीखो, हमेशा सीखो, सीखने की कोई एज नहीं होती, कोई भी कला सीखो, उनको सिखाओ, उनको अपने जो है, जैसे आप टेलीफोन करते हो, कई मैंने देखा लेडीज हैं या जेंट्स हैं 10-10 मिनट 15-15 मिनट अपने दूसरे रिश्तेदारों से बात करते ही रहते हैं। अगर बच्चा उनके पास आता है तो उनको बोलते दूर चला जा बेटा, मेरी बात चल रही है तेरी मासी से। मगर उनको चाहिए कि वो मासी से बात कराए कि बेटा ये अनबी बच्चा आया है, इनसे बात करिए, तेरे मासी जी है, वो मासी भी उनसे पूछेगी हेलो बेटा हाउ आर यू, उनसे पूछेगी, उनसे वो इन टच होगा, इन्वॉल्व होगा। खास करके आज के टाइम में जो कोविड-19 से हमारे बच्चे अंदर घरों में कैद हो रखे हैं, आउटर वर्ल्ड से जुड़ने की कला मिलती है। जैसे ये यूनिसन किंडरगार्टन स्कूल का बहुत ही अच्छा एफर्ट्स है, उन्होंने मेरे को इस लायक समझा, इस काबिल समझा कि मैं आप तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा बात करके, कि आपके बच्चों को भी ऐसा लग रहा होगा हम अंदर जुड़े बैठे थे, ऐड नहीं थे किसी के साथ, मेरे साथ ऐड हुए, और मेरे साथ ऐड होने के आप अपने टीचर्स के साथ भी ऐड हो रहे हैं, पेरेंट्स भी सारे एक दूसरे के साथ देख पा रहे हैं, एक नई कला सीख पा रहे हैं। तो दिस इज वेरी गुड। मतलब ये यूनिसन किंडरगार्टन की बहुत ही अच्छी एफर्ट्स है। मेरी ये शुभकामना है कि ऐसे ही एक्टिविटीज ये मतलब आगे करवाता रहे। और कोई बच्चा और कोई पेरेंट्स कोई क्वेश्चन मेरे से पूछना चाहता है, जहाँ कुछ मेरे से इन्वॉल्व होना चाहता है, तो बच्चे की कुछ क्वेरीज हैं, तो पल्लवी मैम आपकी कुछ क्वेरीज हैं वो आप पूछ सकते हैं। मैंने आपने मेरे को अच्छा लगा। So much, sir. Nice session with you, and I have definitely learned lot of things. I have noted down some of the points that you were for our parents also as well as for our students also. Some beautiful guidelines जो आपके तरफ से हमारे parents के लिए है कि always praise your child. आपका बच्चा हमेशा अपने बच्चे को motivate करते रहे, छोटे जो उनको रिवॉर्ड देते रहे, रिवॉर्ड्स बड़े या छोटे नहीं होते हैं, तो वो जो भी एफर्ट डालते हैं आप उनको आगे बूस्ट अप करते रहे। दिस इज जस्ट फॉर द पेरेंट्स एंड टेल देम ऑलवेज पेरेंट्स कि आपके बच्चे के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो उस चीज को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस स्टूडेंट्स। आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा ये सेशन। आपने सर ने कितना अच्छा मैसेज हमें कन्वे किया कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, अपने ड्रीम्स को चेज करना चाहिए, हमें अपने ड्रीम्स को फॉलो अप करना चाहिए। जैसे सर ने बताया कि उनको उनकी किसी रिलेटिव ने बताया कि चंडीगढ़ इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल सिटी एंड इट इज मेड इन अ वेरी प्लान्ड मैनर। उन्होंने उस चीज को अपना ड्रीम बना लिया कि मुझे जाकर के चंडीगढ़ में ही सेटल होना है, एंड फाइनली वो उसको चेज करते रहे, वो उसको फॉलो अप करते रहे, और आज वो वाकई में अपने ड्रीम को कम थ्रू कर चुके हैं। ही इज देयर इन चंडीगढ़ नाउ, उनका अपना हाउस है चंडीगढ़ में, राइट? सो जस्ट एन एग्जांपल कि हाउ यू कैन चेज योर ड्रीम, यू कैन फॉलो योर ड्रीम, राइट? सेकेंड थिंग फॉर द पेरेंट्स कि just polish the talent that your son or daughter is having in her himself. उसको आपने पॉलिश करना है, अपनी चीजों को उसके ऊपर इम्पोज नहीं करना है बच्चे पे, बल्कि जो बच्चे का टैलेंट है उसको आपने आगे लेके जाना है, उसको पॉलिश करते रहना है। Another thing for our children, हमें सर ने कितनी अच्छी बातें बताई है स्टूडेंट। ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपके टीचर्स भी आपको ये बताते हैं, आज सर ने भी हमें बताया कि गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट? बी पैशनेट एंड सबसे अच्छी चीज लव एंड रिस्पेक्ट योर कंट्री। अपने सिटी को, अपने टाउन को रिस्पेक्ट देना, और उससे ज्यादा आप अपने कंट्री को रिस्पेक्ट देना है, राइट? Our country is the world's best country, so have lot of respect for that. Another very important thing, he has given a message of sharing is caring. सर ने हमें बताया कि जब हम किसी के साथ शेयर करते हैं, how he has been sharing, या उनके cousins, उनके friends, वो अपनी चीजों को अपने friends, अपने cousins, अपने siblings के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में शेयर करते रहे, right? Another important thing, how to
lot of happiness when we help others. So these were some beautiful things जो कि आज हमें इस सेशन में लर्न करने को मिली. I hope सारे स्टूडेंट्स ने भी ये चीजें सीखी. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Did you all आपने सेशन को एंजॉय किया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So shall we say thank you to sir? Shall we say thank you to sir? Yes, ma'am. Thank you, sir. That's all we have for the session. Bye. Bye, ma'am. बच्चों Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye. आपको पता है लास्ट में बच्चों मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ, मेरा पेरेंट्स के लिए भी बच्चों के लिए भी मैसेज है कि एक आपने वर्ड सुना होगा गुड. आपको मैम तो हमेशा देते होंगे गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. ये बहुत ही सुंदर वर्ड है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है. इसको हमेशा लाइफ में अडॉप्ट करो. इसको हिंदी में अच्छा भी बोलते हैं, गुड, अच्छा. हमेशा हम अपनी जगह जगह से सुनते हैं कि हम कोई फिल्म भी देखने जाते हैं, अच्छी फिल्म थी, वो अच्छा बच्चा था, ये अच्छा सॉन्ग था, ये अच्छा डांस था. इसलिए इस अच्छे लफ्ज को, इस गुड लफ्ज को, इस वर्ड को हमेशा अपनी लाइफ में रखना है कि अगर आपने लाइफ में कुछ भी बनना है तो अच्छा ही बनना है. अगर आपने डॉक्टर बनना है तो अच्छे डॉक्टर बनो. अगर आपने टीचर बनना है अच्छे टीचर बनो. अगर आपने इवन के कोई बच्चा, जैसे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी अगर मेरे को सुन पा रहे हो कोई हो, क्योंकि अगर कोई ड्राइवर भी बनना है अच्छा ड्राइवर बनो. अगर शेफ बनना है अच्छा शेफ बनो. अगर मैनेजर बनना है अच्छा मैनेजर बनो. ये अच्छा लफ्ज बहुत ही खूबसूरत लफ्ज है. इसको हमेशा बच्चों अच्छा बनो, अच्छा खेलो. ये अच्छा कैसे कर सकते हो, अच्छे कैसे बन सकते हो, अच्छे कैसे कर सकते हो, आप अच्छे से खाओ. जब आप खाते हैं तो अच्छे से खाना खाओ. जब आप टीवी देखते हो अच्छे से टीवी देखो और ध्यान से देखिए. अगर टीवी देख रहे हो तो ध्यान से टीवी ही देखिए. अगर आप ड्राइंग बना रहे हैं तो अच्छे से ड्राइंग भी बनाइए. अगर आप कार चला रहे हैं तो अच्छे से कार ही चलाइए. ये लफ्ज बहुत ही गहराई का लफ्ज है. गुड बनना, अच्छे बनना, और अच्छे तब बनेंगे जब इन चीजों को आप ध्यान से करेंगे. ध्यान एक बहुत ही अच्छा लफ्ज है. लोग कई बार मेरे से पूछते हैं कि ध्यान मंत्र हो गए, वो ध्यान में लगे. ध्यान और कुछ नहीं है. ध्यान यही है मैम, अगर पढ़ा रहे हैं आप तो अच्छे से पढ़ाइए और ध्यान से पढ़ाइए. और बच्चे पढ़ पा रहे हैं, बच्चे ध्यान से सुनेंगे. आप हमेशा बच्चों को बोलते हैं बच्चे ध्यान से सुनिए, बच्चे ध्यान से देखिए. तो ध्यान जो है ये बहुत ही अच्छा लफ्ज है. अच्छा गुड बनो, अच्छे बनो, ध्यान से काम करिए और लाइफ में आप सक्सेस बनिए. मेरी ऐसी कामना है. आप स्कूल में अच्छे बनकर अच्छे देश के लिए डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और मेरी यही कामना है. और आपका स्कूल अपग्रेड हो. मैंने सुना है कि ये इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड को छूने जा रहा है स्कूल आपका. मेरी ऑलमाइटी से यही विश है को टच करे. और बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार. लव यू ऑल, लव ऑल द टीचर्स एंड रिस्पेक्ट. बच्चे करो. मैं आपको बहुत ही आगे भी मेरी ये होप है मैं आपसे मिलता रहूं. और मेरे में भी जो कमियां हैं वो मैं अपनी कमियों को दूर करके, अपनी और इंग्लिश को इम्प्रूव करके और हिंदी को इम्प्रूव करके आपसे और ही बड़ी मेहनत से आपसे जुड़ता हूँ. Definitely, sir. We will be calling you again to meet our kids. बिल्कुल sir. हम भी चाहेंगे कि आप अपने प्लेटफॉर्म शेयर करें once again. Thank you so much. Thank you. I love you so much, sir. I love you too, beta. I love you too. All my kids. I love you.